हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट ईवीएस, चैप्टर 5 प्लांट ऑफ लाइफ। इसमें आपको इस चैप्टर में आपको प्लांट के बारे में बताया गया है कि प्लांट कैसे बढ़ता है और कैसे उसकी ग्रो होती है। द सीड स्प्राउटेड डीप द ग्राउंड एंड प्लांट सीड वाटर द प्लांट। इसमें आपको नंबरिंग करनी है कि अगर आप प्लांट करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहले तो एक थोड़ा सा डीप ग्राउंड मतलब थोड़ा सा उसमें गड्ढा खोदेंगे, उसमें फिर सेकेंड टाइम में उसके बीज सीड, उसकी मतलब प्लांट के जो सीड रहते हैं, बीज बोलते हैं उनको, वो डालेंगे। ओके, फिर उसके बाद में उसमें पानी डालेंगे, फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर बाद मतलब आपका डीप द ग्राउंड 1 नंबर, प्लांट सीड 2nd नंबर, वाटर द प्लांट 3rd नंबर और द सीड स्प्राउटेड 4 नंबर। ओके, अब इसके बाद है आपका सेकेंड पेज। They can live on land and in water. Plants are important part of nature. Plants are very useful to us and we get many things from plants such as food, paper etc. Most of our food that we eat comes from plants, for example fruit and vegetables, cereals, pulses etc. We eat roots, leaves, stems, flowers and fruit of plants. Wood plants have different parts. Each part serves different functions that help the plant survive. Main parts of a plant roots lies below the surface of the soil and hold the plant firmly in place. Its main function is to absorb water and nutrients for the plant. It stores food and nutrients and provides support to the plant. Roots of many plants are eaten as food such as beetroot, radish, carrot etc. Stem can be green or brown and can be thin or thick. It holds the plant upright. It carries water and minerals from the roots to the leaves and takes the food back down the plant to be distributed and stored. It supports the branches, leaves, flowers and fruits and connects them with the roots. Stems of many plants are eaten as food such as potato, ginger etc. पौधे प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। वे जमीन पर और पानी में रह सकते हैं। योजनाएं हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं और हमें पौधों से बहुत सी चीजें मिलती हैं जैसे कि भोजन, कागज आदि। हम जो भी भोजन खाते हैं उसका अधिकांश भाग पौधों से प्राप्त होता है, जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दालें आदि। हम जड़, पत्ते, तना आदि खाते हैं। पौधों के फूल और फल, वुड प्लांट्स के अलग अलग हिस्से होते हैं। प्रत्येक भाग अलग अलग कार्य करता है जो पौधे को जीवित रहने में मदद करता है। पौधे के मुख्य भाग जड़ें मिट्टी की सतह के नीचे होती हैं और पौधे को मजबूती से पकड़ती हैं। इसका मुख्य कार्य पौधे के लिए पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करना है। यह भोजन और पोषक तत्वों को संग्रहित करता है और पौधे को सहायता प्रदान करता है। कई पौधों की जड़ों को भोजन के रूप में खाया जाता है, जैसे कि चुकंदर, मूली, गाजर आदि। तना हरा या भूरा हो सकता है और पतला या मोटा हो सकता है। यह पौधे को सीधा रखता है। यह पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है और भोजन को वापस पौधे में ले जाता है ताकि उसे वितरित और संग्रहित किया जा सके। यह शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देता है और उन्हें जड़ों से जोड़ता है। कई पौधों के तनों को भोजन के रूप में खाया जाता है, जैसे आलू, अदरक आदि। Leaf is a flattened structure of plant which is typically green and blade-like, that is attached to a stem. Leaves are of different shapes, sizes and texture. Some leaves are wide and hairy, whereas some leaves are small and shaped like needles. Green leaves prepare food for plant through the process of photosynthesis. That's why leaves are called food factory of plants.
In the process of photosynthesis, leaf prepare food material in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and green pigment called chlorophyll present in the leaf. There are large number of minute openings present on the leaves, called stomata, through which gaseous exchange takes place between the atmosphere and the plant body. Non-green plants such as mushroom do not prepare their food. Leaves of many plants are eaten as food such as spinach, lettuce, cabbage etc. Flowers are the most attractive part of a plant. Each flower types have a different physical structure, color and scent from those of other flower type plants. Petals and the flower smell attract insects and bees to pollinate the flower. Sweet smelling flowers petals are used for making perfumes. Flowers are widely used for decoration and for making garlands. Some of the common flowers are lotus, rose, marigold, jasmine, sunflower, hibiscus etc. Flowers that we eat are broccoli and cauliflower. 31 लीफ पौधे की एक चपटी संरचना होती है जो आमतौर पर हरे और ब्लेड जैसी होती है, जो एक तने से जुड़ी होती है। पत्ते विभिन्न आकार और बनावट के होते हैं। कुछ पत्तियां चौड़ी और बालों वाली होती हैं, जबकि कुछ पत्तियां छोटी और सुइयों के आकार की होती हैं। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं, इसलिए पत्तियां पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहलाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्ती में उपस्थित सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हरे रंगत द्रव्य, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, की उपस्थिति में भोजन सामग्री तैयार करते हैं। पत्तियों पर बड़ी संख्या में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिसके माध्यम से वायुमंडल और पौधे के शरीर के बीच गैसीय विनिमय होता है। गैर हरे पौधे जैसे मशरूम अपना भोजन नहीं बनाते हैं। कई पौधों की पत्तियों को भोजन के रूप में खाया जाता है, जैसे पालक, सलाद पत्ता गोभी आदि। फूल एक पौधे का सबसे आकर्षक हिस्सा होते हैं। प्रत्येक प्रकार के फूलों की एक अलग भौतिक संरचना, रंग और गंध अन्य फूलों के प्रकार के पौधों से होती है। पंखुड़ियों और फूलों की गंध फूलों को परागित करने के लिए कीड़ों और मधुमक्खियों को आकर्षित करती है। सुगंधित फूलों की पंखुड़ियों का उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। फूलों का व्यापक रूप से सजावट और माला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ सामान्य फूल कमल, गुलाब, गेंदा, चमेली, सूरजमुखी, गुड़हल आदि हैं। जो फूल हम खाते हैं वे हैं ब्रोकली और फूलगोभी।